Good morning, students. Human excretory system is our today's topic. In previous video, we have understand the different type of excretory products and the term is used for that animals like ammonia, then ammoniotelic organism. When the urea is waste product, then ureotelic, uric acid, then uricotelic. Uh, Today we will study the human excretory system, and we can understand this by this diagram. In this diagram we can see the main part of the excretory system, that is kidney. Human excretory system basically consists of a pair of kidney. How many? A pair of kidneys, a pair of ureters, both side, right and left, and single urinary bladder where urine is collected, and the urethra which helps to pass out this urine. These structures are included as human excretory system. This is the diagram. In this diagram the basically जो main structure है जो kidneys है, तो you can see these kidneys where this is the right kidney and this is the left kidney, and kidneys you can see the diagram where left kidney is located just बहुत little above than right kidney, and you can see that this cap like structure which is called adrenal gland, and kidney makes urine after the filtration of blood, and which is carried out by a duct which is called urethra, and this urethra का जो है ट्रांसपोर्ट करेगी किस चीज़ का? यूरिन का, एंड यूरिन जो है ये कहाँ पे कलेक्ट होगा? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, विच इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, एंड यूरेथ्रा इज़ अ opening or the small passage through which the urine is passed out from the body, and this structure we will study in detail in because kidney functions as the filtration of blood, so blood is carried out through these veins or artery, and they bring the blood into the where? Kidneys, and when the blood is pure after the ultrafiltration, the renal artery take this blood, pure blood, and transport this blood for whole part of body, and this is the human excretory system. The vein which carries the blood into the kidneys is called inferior vena cava, and the renal artery, it is also takes blood into the kidney. Now kidneys are the reddish brown bean shaped structure which are situated at the level of last thoracic, जो हमारी वर्टिब्रा है, जो बोन के अंदर जो बैकबोन होती है ना, तो उसमें जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं उनको वर्टिब्रा बोलते हैं, और उनके नाम हैं, जिस जिस रीजन में वो जाती जाएंगी तो उस रीजन में उनके नाम हैं, और यही हमारा अगला चैप्टर है. तो थोरेसिक वर्टिब्रा जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से लेके और जो थर्ड लंबर वर्टिब्रा है वहाँ तक का जो रीजन है, वहाँ उसके जो है उसके क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, तो वहाँ पर इन किडनी की सिचुएशन है. किडनीज जो है मीजोडर्मल है, इसका मतलब है कि जब किडनी का ओरिजिन होता है फीटस के अंदर, जब एम्ब्रियो जो है डेवलप करता है, बेबी जो है प्रेगनेंसी में जब डेवलप करेगा तो मीजोडर्म से किडनी बनेगी. As they develop from mesodermal nephrostomes, जिसको हम मीजोमियर्स भी बोलते हैं, दे आर सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स, और यही सीलिएटेड स्ट्रक्चर जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन थी उस वक्त तब भी ये क्या करते थे? एक्सक्रीशन का ही काम करते थे. पोजीशन बेसिकली किडनी की क्या है? किडनीज आर लोकेटेड बिलो द डायफ्राम,
ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड। हम लोगों ने डायग्राम पढ़ा हुआ है जब हम लोगों ने एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट ऊपर पढ़ा हुआ था, रिब्स के ठीक नीचे जब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, हमने वहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी स्टडी किया था, डायफ्राम डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, तो ठीक उसके नीचे लेफ़्ट और राइट साइड में होती है। और जो राइट किडनी है वो मैंने अभी आपको दिखाया, वो थोड़ा सा नीचे है, और जो लेफ़्ट किडनी है वो थोड़ा सा वो है, राइट किडनी नीचे को भी है और थोड़ी सी स्मॉलर है। लेफ़्ट किडनी क्या है, थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि लीवर को जगह चाहिए, तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा ऊपर की साइड है। जो ईच किडनी है एन एडल्ट की, तो वो एक्चुअली कितनी होगी, 10 से लेके 12 सेंटीमीटर तक उसकी लेंथ होती है, 5 to सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस, विद एन एवरेज वेट ऑफ, और एवरेज वेट कितना होता है 120 to 170 ग्राम। मेल में थोड़ा, मेल और फीमेल थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि हमने एवरेज लिखा है, तो मेल में आप मान सकते हो 150 ग्राम और 135, यानी कि इनका वजन फीमेल्स में थोड़ा कम है। तो ये था थोड़ा सा इसके बारे में। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी कैन बी स्टडीड वेल अंडर 2 हेड्स। पहला एक्सटर्नल एंड दूसरा इंटरनल, यानी कि पहले हम किडनी को एक्सटर्नली पढ़ेंगे, बाहर से देखने में थोड़ा सा जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, फिर बहुत ज़्यादा अंदर मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो अगर हम बाहर से देखते हैं स्ट्रक्चर को, यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो जो आउटर सरफेस है जो किडनी का वो कॉन्वेक्स है। आप देख रहे हो ना, ये कैसा है, कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स इसकी सरफेस है, जो इनर सरफेस है वो कॉनकेव है। तो क्या है इसकी वजह से इसके पास एक नोच हो गया, यानी कि जैसे ये कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो गया, और ये कनकेव, तो यहाँ पर जो है नोच आ रहा है बीच में, तो इस नोच को हाइलम बोलते हैं। और इस नोच की वजह से ही, इस नोच के अंदर ही क्या है, ब्लड की सप्लाई जा रही है, इसमें रीनल आर्टरी, रीनल वेल जो है एंटर कर रहे हैं, तो इस तरह से ब्लड सप्लाई जाती है। और इसके बाद क्या है, आउट ऑफ द किडनीज अलॉन्ग विद द यूरेटर द नर्व सप्लाई ऑफ किडनी। यहाँ पर सिर्फ ब्लड की सप्लाई नहीं जा रही है, इसके बाद इसमें यूरेटर की भी सप्लाई बाहर आ रही है, और साथ में जो नर्व हैं जिससे क्या है किडनी रेगुलेट होगी ब्रेन के थ्रू, तो नर्व भी इसके अंदर जा रही हैं। इसके बाद जो ये हमारी जो किडनी है, ये बेसिकली जो है प्रोटेक्टिव कैसे है, ये जो है 3 लेयर इसको प्रोटेक्ट करती हैं। और जो सबसे देखने में आपको यहाँ पे बाहर की तरफ, अंदर की तरफ लग रहा है रीनल कैप्सूल, लेकिन जो है सबसे जो ये रीनल जो कैप्सूल है, ये सबसे अंदर वाला हिस्सा है, सबसे बाहर होती है रीनल फैशिया, और रीनल फैशिया के बाद होता है एडिपोज लेयर, जिसका काम है शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, और जो दूसरा इनर मोस्ट लेयर है रीनल कैप्सूल है। तो यानी कि बेसिकली तो जो, यानी कि जो मेन लेयर है किडनी की वो तो है रीनल कैप्सूल, लेकिन इसके बाहर एक्स्ट्रा जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर है, तो वो है रीनल फैशिया और साथ में एडिपोज लेयर। तो ये सब क्या करती हैं, किडनी को कोई भी एक्सटर्नल शॉक होता है या इंजरी होती है, चोट लग जाए या गिर जाए, तो उसकी वजह से उसको बचाती है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमने बाहर की स्ट्रक्चर बाहर से देखने में पढ़ लिया, अब हम लोग इसका एलएस कट करेंगे और एलएस के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, तो ये एलएस है डायग्राम, जो है मैं इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करती हूँ, तो थोड़ा सा हम इसको जूम करेंगे। तो जूम करने के बाद हम थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या है, कि अब 2 पार्ट आपको बेसिकली दिखाई दे रहे हैं। एक तो क्या पार्ट है, ये वाला, ये जो आप ब्लैंक आप देख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स, और जिसमें आप ये इस तरह की स्ट्रक्चर देख रहे हो पिरामिड लाइक, दिस इज़ कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड। तो ये जो कॉर्टेक्स है, अगर आपको 10th का थोड़ा सा भी याद है तो आपको याद होगा कि जो किडनी है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के पार्ट अगर थोड़ा थोड़ा अगर आपको याद हो तो जो है बोमन कैप्सूल होता है, उसके बाद जो है रीनल ट्यूब्यूल होता है। तो जो बोमन कैप्सूल वाला जो पार्ट है वो सारा जो है कॉर्टेक्स में है, और जो हेनले लूप वाला जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जो रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट है हेनले लूप, वो सारा जो है वो यहाँ पर इसको यानी कि मेडुलरी पिरामिड की तरह से वो उसको फॉर्म करता है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। जो कॉर्टेक्स है वो डार्क कलर का होता है, और जो ये मेडुलरी पिरामिड है वो बेसिकली लाइटर कलर का होता है।
तो और देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें हाँ, इनसाइड द किडनी द यूरेटर इज, अब क्या है इसमें जो यूरेटर, क्योंकि निकल तो किडनी से ही रही है। सारे बोमेन कैप्सूल जब हेनले लूप वगैरह बाद में आपने देखा होगा स्ट्रक्चर में, कलेक्टिंग डक्ट में जो है अपना यूरिन पास आउट कर देते हैं। अब जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट है वो बाद में क्या करती है, एक फनल शेप्ड कैविटी बनाती है, दैट इज कॉल्ड पेल्विस। और ये जो पेल्विस है इसका जो फ्री एंड है वो उसके आगे भी बहुत सारी कप लाइक कैविटीज़ होती हैं जिसको बोलते हैं कैलिकस, और कैलिक्स इसका सिंगुलर है। तो कैलिकस मेजर एंड कैलिकस माइनर। तो मेड्यूला जो होता है वो प्रोजेक्ट्स इनटू द कैलिकस। जो ये मेड्यूला है, ये मेड्यूला क्या करता है, ये मेड्यूला कैलिकस में खुला हुआ है। फिर वो जो कैलिकस है वो कैलिकस कैल्विक पेल्विस में खुला हुआ है, और फिर वो पेल्विस मिल करके क्या बनाती है, आगे चल के यूरेटर बनाती है। ठीक है, तो ये जो जो मेड्यूला है ये आपको मैंने बताया कैलिकस में खुला हुआ है, और इसके बाद एज अ कॉनिकल प्रोसेसेस, यानी कि कॉनिकल शेप में रहेगा, तो इसीलिए हम इसको रिनल पिरामिड बोलते हैं। यानी कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, कॉनिकल शेप में है, तो ये रिनल पिरामिड बहुत सारे जो है नेफ्रॉन के वजह से बना हुआ है। जो टिप है पिरामिड का तो उसको बोलते हैं रीनल पैपली। जो आप देख रहे हो ना, ये जो टिप है जो थोड़ा जो नैरो है, ये उसको बोलते हैं रीनल पैपली, और जो इसका ब्रॉडर साइज है हाँ, द कॉर्टेक्स स्प्रेड्स इन बिटवीन मिड, और ये जो कॉर्टेक्स है ये दो मेडुला के बीच में जो कॉर्टेक्स वाला टाइप आ रहा है, जो पोर्शन आ रहा है, इट इज़ कॉल्ड रीनल कोलम। और रीनल कोलम के साथ साथ इसको कॉलम्स ऑफ बर्टिनी भी बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। ये आप देख रहे हो ना, कई बार पूछ लेते हैं कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है। तो ये थी हमारी जो हमने स्ट्रक्चर है बाहर से इसका एलएस काट के देख लिया। अब हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है, अब हम इसकी सेल को स्टडी करेंगे, किस किस टाइप की सेल से ये मिलके बना हुआ है। तो हर लोग जानते हैं कि जो किडनी है स्पेशल टाइप की, इसके पास सेल्स होती हैं, और अबाउट 1 मिलियन जो होती है हर एक किडनी के अंदर, और वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और उसका नाम है नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन को बोलते हैं इट इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। तो यानी कि अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड uriniferous tubule. Uriniferous tubule is also the name of nephron. So each nephron consists of basically two parts. First is Malpighian body, which is also called renal corpuscles, and the second part is called renal tubule. तो renal tubule और साथ में Malpighian body. Malpighian बॉडी या जिसको हम रीनल कॉर्पसल्स बोलते हैं, तो उसका वो किससे बना है ये मैं आपको दिखा रही हूँ डायग्राम। ये है हमारा मेल्पिगियन बॉडी। मेल्पिगियन बॉडी के अंदर आप क्या देख रहे हो, बोमन कैप्सूल है, और साथ में आपने ये क्या देखा है, ये आप ये देख रहे हो इसके पास ग्लोमेरुलस है। तो ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमन कैप्सूल इज कॉल्ड मेल्पिगियन बॉडी। ठीक है, यानी कि जो नेफ्रॉन का आगे वाला पार्ट हम लोग बनाते हैं ना डायग्राम में, 10th में आपने बहुत बार बनाया होगा, तो वो उस पार्ट को बोलते हैं हम लोग मेल्पिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल। तो विच फिल्टर्स आउट लार्ज सॉल्यूट। अब क्या होता है, जो बड़े बड़े सॉल्यूट होते हैं ना, जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, बड़े बड़े जो छन के नहीं जा सकते, उनको वो क्या करता है, फिल्टर करता है ब्लड से, और फिर उनको डिलीवर्स करता है स्मॉल सॉल्यूट्स टू द रीनल ट्यूब्यूल। जो आगे का पार्ट हम लोगों ने डायग्राम में बनाया हुआ है, तो उस पार्ट में जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल सॉल्यूट्स होते हैं, वो तो छन के निकल जाते हैं। जो बड़े पार्ट हैं वो उसमें से छन के नहीं निकलते, और वो एज इट इज़ ब्लड में रह जाते हैं। तो पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को क्लियर करेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं, ये बोमन कैप्सूल इसको बोलते हैं, और इस बोमन कैप्सूल में क्या हुआ है, एक तरफ से आर्टरियोल आ रही है, और फिर नेटवर्क बन रहा है किसका, कैपिलरीज का, और फिर वही कैपिलरीज जो है आगे फिर दोबारा से एफरेंट एट्रियोल की तरह से बाहर निकलेगी बोमन की, यानी ब्लड की सप्लाई आएगी, फिल्ट्रेशन होगा, चला जाएगा, आएगी चला जाएगा, ऐसे जो है कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। तो ग्लोमेरुलस को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज
फॉर्म्ड बाय द एफरेंट। ये जो ग्लोमेरुलस आप देख रहे हो ना, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, जो नेटवर्क है कैपिलरीज का, इसको। तो ये कैसे बना, ये एफरेंट आर्ट्रियोल थी ना, उसकी फाइन ब्रांच होगी बहुत सारी रीनल आर्टरीज में। तो रीनल आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचेस ने क्या बना दिया इसको, एफरेंट आर्ट्रियोल, और बहुत सारी कैपिलरी से एक टफ्ट सा बन गया, तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो इज शॉर्ट है, वाइड है, दैट सप्लाइज ब्लड टू द ग्लोमेरुलस, व्हाइल द एफरेंट आर्ट्रियोल इज नैरो। अब जो आई थी तो वो तो बड़ी थी, लेकिन आप देख रहे हो ना डायग्राम में, ये थोड़ा वाइड है और ये थोड़ी सी क्या है, नैरो है इसके कंपैरिजन, और लॉन्ग, कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। हमें बहुत अच्छे से याद रहेगा, एफरेंट का मतलब होता है जो अंदर आती है, और ईफरेंट का मतलब होता है जो बाहर निकल जाती है। यानी कि एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करेगी, ब्लड को लेके आएगी ग्लोमेरुलस के अंदर, और जो ईफरेंट आर्ट्रियोल है वो ब्लड को ग्लोमेरुलस से दूर लेके जाएगी। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ईफरेंट आर्ट्रियोल में और एफरेंट आर्ट्रियोल में क्या डिफरेंस है। तो बिल्कुल सीधा सा डिफरेंस है। जो एफरेंट आर्ट्रियोल है तो ये क्या है, फाइन ब्रांचेज है रीनल आर्टरी का, और दोनों ही रीनल आर्टरी के, इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। लेकिन क्या है, जब ब्लड आता है तो हम उसे आर्टरी बोलते हैं, और जब वो ब्लड वापस जाता है तो हम उसको वेन बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं फाइन ब्रांचेज ऑफ रीनल आर्टरी, और यही वही आप लोग देख रहे हो। तो अब क्या हुआ, इसका नाम बन गया फाइन ब्रांचेज ऑफ रीनल वेन्स, तो विच लीव द किडनी। यहाँ पर एंटर कर रही है किडनी के अंदर, और यहाँ पर क्या है, किडनी को छोड़ के जा रही है। और ये अराइज फ्रॉम डोर्सल ऑर्टा, क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो डोर्सल ऑर्टा से कैरी होता है पूरी बॉडी के अंदर, डोर्सल ऑर्टा उसको लेके चलती है। तो डोर्सल आर्टरी है तो ऑर्टा से निकलेगी, तो ऑर्टा से आई है और रीनल आर्टरी, और वो किडनी के अंदर एंटर कर रही है। इसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। और जो ईफरेंट आर्ट्रियोल है, जब वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया उसके बाद जो बाहर निकल रही है किडनी से, और बाद में ये जॉइन होकर के बहुत सारे एट्रियोल एक वेन बनाएंगे, और इसको बोलेंगे इंफीरियर वेना कावा। और ये क्या बनाएंगे, हाँ ये तो बनाएंगे वेन, लेकिन ये तो डोर्सल ऑर्टा का ही पार्ट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दे ब्रिंग आर्ट्रियल ब्लड टू द रीनल कॉर्पसल। जब ऑर्टा से आई हैं तो कैसा ब्लड लेके आएंगी, आर्ट्रियल ब्लड लेके आएंगी, और दे कैरी वीनस ब्लड, और यहाँ से ये कैसा ब्लड लेके जाएंगी, वीनस ब्लड लेके जाएंगी, और वेन है तो वीनस ब्लड लेके जाएंगे रीनल कॉर्पसल से। इसका डायमीटर आपने देख ही लिया, ज़्यादा था, और इसका डायमीटर कंपैरेटिवली कम था। ये लॉन्ग भी थी, नैरो भी थी, और ये वाइड भी थी और शॉर्ट भी थी। जो ब्लड फ्लोइंग इन इट्स रिच इन वेस्ट प्रोडक्ट। जब शुरुआत में ब्लड आया था, रीनल आर्टरी लेके आई थी, तो ब्लड में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट थे। जैसे ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया तो सारा जो वेस्ट था वो कहाँ चला गया, हाँ वो चला गया हमारे नेफ्रॉन के अंदर, और नेफ्रॉन से बाद में चला गया कलेक्टिंग डक्ट और यूरेटर के पास। तो जो ब्लड था फिर उसके बाद वो उसके अंदर पुअर वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा रीनल एट्रियोल, और एट्रियोल है एफरेंट और ईफरेंट। इसके बाद बोमन कैप्सूल। जो बोमन कैप्सूल है जिसको हम ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी बोलते हैं, तो ये थोड़ा समझने के बाद है। ये डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है। डायग्राम आपने देखा अभी इसमें क्या है, डबल वॉल्ड है, आप देख रहे हो ना, डबल वॉल्ड है। तो डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, और इसके सराउंड्स द ग्लो, और इसके अंदर क्या आप देख रहे हो, चारों तरफ से क्या है, ग्लोमेरुलस लगा हुआ है। द आउटर पार्शियल वॉल विच इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैटेंड स्क्वैमस सेल्स। बाहर वाली जो लेयर है वो बिल्कुल फ्लैटेंड स्क्वैमस सेल्स की बनी हुई है। जो इनर है वो विसरल वॉल है, और वो स्पेशल टाइप की, लेकिन थोड़ी सी फ्लैटेंड कम है, उन सेल्स की बनी थी, और उन सेल का नाम है पोडोसाइट। क्या नाम है, पोडोसाइट। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो बाहर वाली लेयर है वो फ्लैटेंड स्क्वैमस टिश्यू की बनी हुई है, और ये वाली जो लेयर बनी है वो पोडोसाइट की बनी हुई है। इसके बाद ये हमारा डायग्राम है नेफ्रॉन का। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करना है कि जो मैंने दो पार्ट अभी आपको बताए थे वो दो पार्ट थे। एक तो ये वाला पार्ट जिसको हम बोल रहे हैं मेलपिगियन ट्यूब्यूल, और इसके बाद जितना भी इसका पार्ट बचता है ये सारा पार्ट ये हमारा क्या बोलता है, रीनल ट्यूब्यूल। ये हमारा हो गया शुरुआत वाला मेलपिगियन बॉडी, सॉरी ट्यूब्यूल मैंने बोल दिया गलती से, तो मेलपिगियन बॉडी और साथ में हो गया रीनल ट्यूब्यूल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रीनल ट्यूब्यूल के बारे में
तो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।